student, activity number 3. In activity number 3 we need to measuring average speed. That means we are just measuring the average speed. What is the average speed? So for that we need to choose 2 points. Let us say this is an I'll first read what is the meaning, after that I will explain. Choose 2 points, say A and B, 50 meters apart in the school playground. Ask some student to stand at point A, ask another group of student with stopwatch to stand at B. So when you clap your hand, the student at A start running towards the point B in any path. At the same time, the students at B start their stopwatch. See that for each runner there is an student at B to measure the time taken for completing the race. Note the time taken by each student to cover the distance between the point A and B. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर A, ठीक है, पॉइंट ये है B, ठीक है, से इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर्स है, ओके, 50 मीटर्स है। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को आपको ठहरा देना है लाइक दिस, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को आपको ठहरा देना है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ वाले स्टॉप वॉच लेके ठहरेंगे, लोग खाली नहीं रहेंगे, दे विल जस्ट कीप विथ स्टैंड विथ स्टॉप वॉच। और यहाँ के जो स्टूडेंट है दे विल व्हाट दे विल गोइंग टू डू, दे विल जस्ट रन, ओके। द टास्क फॉर 2 points student, the students at point A they will going to run and they have to reach the point B, and the student at point B their task is here they will just start the stopwatch when they have started running। यहाँ पे होता क्या है, पॉइंट ए पॉइंट बी पे दो जनों को ठहरा दीजिए आप। ठहराने के बाद क्या कीजिए कि पॉइंट ए वाले का जो टास्क रहेगा, जो काम रहेगा वो भागना है, भाग के पॉइंट बी पे रीच होना है। और पॉइंट बी वालों का काम क्या रहेगा कि वो स्टॉप वॉच ऑन करके देखना है कि कितनी टाइम में वो लोग आ रहे। सो यहाँ पे मैं एक डेटा बना लेता हूँ, स्टूडेंट, ओके, एज यू कैन सी ऑन दी बोर्ड, स्टूडेंट आफ्टर द टाइम टेकन टू रीच टाइम taken to reach point B, okay, these 2 columns I made, and one more column I will make like average speed, as you can see here. Students say I will just mark few names like students is nothing but A1 A2 A3। देखिए 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे रन कर रहे हैं, A1 A2 A3, और टाइम टेकन बाई स्टूडेंट A1 इज नथिंग बट T1, यानी कि जितना टाइम स्टूडेंट A1 ने लिया वो टाइम बराबर होगा T1 के, और जितना टाइम स्टूडेंट A2 ने लिया उसका वो बराबर होगा T2 के, और जितना टाइम A3 ने लिया वो बराबर होगा T3 के, ओके। दिस 3 थिंग्स है। अब हम आपको एवरेज स्पीड मालूम करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड का हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओके। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, ओके, बाय टाइम टेकन। So here you know the formula for average speed, total distance by time taken. Suppose a student A1, okay, we have total distance is constant like 50 meter. 50 meter is constant. Like a student A1 takes, like suppose I will tell you he might take we will observe like it take time like 25 seconds to reach point B. Like A2 student distance is constant 50 meter, he may take like 50 seconds, okay, and A3 like he may take 75 seconds. So here time is in, so numerator is in meters and denominator is in seconds, same as meters per second, so meter per second. So after solving this, what we will get for A1 student, it is 0.25 ones are 25 twos are, that is I am getting 2 for, that is first I am getting answer 2. So what will be the unit? Now I have to write here 2 meters per second, okay. That means a student is running in 1 second 2 meters, he is covering the distance. Now second student 50 by 50 means 50 ones are 50 ones are, answer is 1 is 1 meter per second. That means student A2 covers 1 meter for 1 second. That means his speed of running is averagely 1 meter for 1 second. And student here T3, now we have to solve this 51, like 5 tens are 50, 5 ones are 5, 5 fives are like 25, then 2s are
5 2 जा 5 3 जा 2/3. 2/3 again we need to solve like 3 divided by 2. 0 point is 26. Okay, 18 by 2 we remains again 20 18. So the student 3 taken 0.66 meter per second. So this is the average speed, like average speed for different student. So hope you understood this activity. This activity we have performed to understand the average speed. अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. ये स्टूडेंट A1 है, स्टूडेंट A2, स्टूडेंट A3. जो टाइम इनको जा रहा है T1, ठीक है. यहाँ पे जो टाइम इनको ले रहा है T2 एंड यहाँ पे इनका जो टाइम है ये T3 है. तो मैं इसको सपोज कर लिया था T1 यानी कि 25 सेकेंड सपोज कर लिया था. इसको T2 को मैं 50 सेकेंड सपोज कर लिया था एंड T3 को 75 सेकेंड सपोज करा था. सेम मैं फॉर्मूले के अंदर डाल दे रहा हूँ. A1/T1, A1, A2, A3 ऑलवेज कांस्टेंट. व्हाई इट इज कांस्टेंट? दिस इज द जस्ट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस. ओके, स्टूडेंट A1 का जो न्यूमरेटर रहेगा हमारा वो कांस्टेंट रहेगा, 50 मीटर रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते. तो 50/25 इक्वल टू 2 मीटर्स, लाइक 50/50 1 मीटर पर सेकेंड. 50/75 0.66 meter per second. This is our activity. Okay, so we have taken like average speed is equals to total distance by time taken. Why like this? Similarly, instead of speed, if you are using like average velocity, okay, average velocity is nothing but is equals to total displacement. Okay, displacement by time taken. By the help of this formula you can calculate the average velocity also. Now I will going to explain you the difference between speed and velocity. So for speed and velocity I will just give you one answer on screen. I will explain this answer. You need to remember this answer, understand and remember this answer. That's enough for you for speed and velocity. Okay student, now we will going to learn one important thing related to the speed and velocity. This is a very important answer for your examination point of view as well as for your lesson point of view also. And the answer is difference between speed and velocity. This answer, while I am this explaining you, you will going to see this answer on your screen rather than seeing me. You will get the answer in front of you. Okay. Now first I will read this answer. After that I will explain you this answer. The answer is, जैसा कि स्टूडेंट हमारे टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम स्पीड और वेलोसिटी का आंसर को पढ़ेंगे, समझेंगे. ठीक है, अभी ये आंसर आपके स्क्रीन पे आएगा, मैं नहीं आऊँगा. आपको ये आंसर यानी कि पढ़ना है, समझना है और याद करना है. तो शैल आई स्टार्ट नाउ? कम ऑन. सो स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड, first I will speak about speed. It is defined as the rate of change of distance. Speed is nothing but it is defined as the rate of change of distance. जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है स्पीड से रिलेटेड, ये डिफाइंड होता है. किस चीज़ से डिफाइंड होता है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस जो चेंज होता है उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो जो बताया जाता है वो स्पीड है. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है. थर्ड पॉइंट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो. स्पीड कभी भी आपको ना ही नेगेटिव होगा ना ही जीरो होगा. दैट मीन्स स्पीड इज ऑलवेज इन नंबर एक्सेप्ट जीरो. लाइक 1 हो सकता, वो 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4, बट इट कैन नॉट बी जीरो और इन -4. नाउ पॉइंट नंबर 4, स्पीड इज अ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन. स्पीड एक चीज़ आप ये मान सकते हैं कि स्पीड एक वेलोसिटी है विदाउट डायरेक्शन. स्पीड इज एक्चुअली अ वेलोसिटी इफ वी आर कंसिडरिंग दैट इट डोंट हैव डायरेक्शन. यानी कि स्पीड एक वेलोसिटी हो सकता, शर्त यह है कि उसके अंदर डायरेक्शन नहीं रहेगा. स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू दी वेलोसिटी. स्पीड कभी भी वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती या इक्वल नहीं भी हो सकती. पॉइंट नंबर 5 ये बता रहा है हमें. नाउ पॉइंट नंबर 6, स्पीड नेवर डिक्रीज विथ टाइम. फॉर ए मूविंग बॉडी इट्स नेवर जीरो. स्पीड कभी भी डिक्रीज नहीं होगी टाइम के साथ, और मूविंग बॉडी के लिए ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती स्पीड. यानी कि एक बॉडी है, यानी कि कार है या फिर बाइक है, चल रही है, ठीक है. सपोज वो 2 मिनट चली, तो 2 मिनट चली तो उसकी जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती.
1 2 3 4 समथिंग, और मीटर पर सेकेंड रहेगा या फिर किलोमीटर पर आवर रहेगा, वॉट एवर इट मे। नाउ पॉइंट नंबर 7, स्पीड इन SI इज मेजर इन मीटर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकेंड में स्पीड जो होती है SI यूनिट में मीटर पर सेकेंड में मेजर होती है। नाउ नेक्स्ट वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट दी like velocity. Okay, what is velocity? It is defined as the rate of change of displacement. जो velocity होता rate of change of displacement रहेगा आपको। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो होती है आपको वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। पॉइंट नंबर 3, इट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। देखिए जो आपकी यहाँ पे वेलोसिटी को एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी कभी भी आपको ज़ीरो हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। अब सर आप सवाल पूछेंगे, सर ये देखिए ये पॉजिटिव बोल तो समझ नहीं आता सर, वेलोसिटी यानी 1 2 3 4 नंबर, लेकिन ये ज़ीरो कब हो सकती है और नेगेटिव कब हो सकती है? देखिए ये ज़ीरो कब होती बोल तो जैसा कि आप ऊपर कोई चीज़ में ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, आई एम जस्ट थ्रोइंग समथिंग अपवर्ड साइड, तो जब वो अपवर्ड साइड होता है तो उसकी स्पीड कम होती, किसकी कौन से भी ऑब्जेक्ट की कम होते 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 पॉइंट पे जाके उन्हें ज़ीरो हो जाती। ज़ीरो होने के बाद जब उन्हें नीचे गिरते रहती वो हम नेगेटिव में लेंगे, उसको हम जब नीचे गिरते रहती नेगेटिव में इसलिए लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। एक्चुअली जो वेलोसिटी होती है जब मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, पहले तो वेलोसिटी इनिशियली ज़ीरो रहेगी मेरी, फिर जैसा ही मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ उसको तो इसकी वेलोसिटी यानी कि मेरे हिसाब से बढ़ते रहती, लेकिन एक्चुअली उसको हम माइनस में लेंगे, वो कम होते रहती। मेरे हिसाब से क्यों बढ़ते रहती? क्योंकि मैं अच्छा जोर से फेंका था ऊपर, लेकिन वो एक्चुअल में कम होती। एक्चुअल में कम क्यों होती? क्योंकि इसको एक फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्स एक्ट कर रहा होता है, तो वो माइनस 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 में लेंगे है वैल्यू। जैसा ही वो रीच करेगा ज़ीरो हो जाएगा, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर वो फॉल होती, तो जब हम उसको पॉजिटिव में ले सकते। तो इस तरीके से जो आपकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती, ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती। वेलोसिटी इज़ डायरेक्टेड स्पीड, वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टेड स्पीड है, यानी कि शॉर्टकट स्पीड बोल सकते हैं। स्पीड का जो शॉर्टकट है वो वेलोसिटी है। नाउ पॉइंट नंबर 5, अ बॉडी में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटीज बस द सेम स्पीड। एक जो बॉडी रहती है उसके वेलोसिटीज डिफरेंट होते रहेंगे लेकिन स्पीड उसकी सेम रहती है। इसके बारे में हम आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6, वेलोसिटी कैन डिक्रीज विथ टाइम फॉर ए मूविंग बॉडी, इट कैन बी ज़ीरो। जो वेलोसिटी होती मूविंग ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज होती और वो ज़ीरो भी हो सकती। तो इसका जो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 है, इसके लिए एक्चुअली आपको थोड़ा सा मैं मेरा फेस शो करना पड़ेगा। सो देखिए व्हाट इज़ पॉइंट नंबर, so as you can see what is point number 5 says. Okay, point number 5 says that a body may possess different velocity but same speed. देखिए एक बॉडी होती है वो क्या है, डिफरेंट वेलोसिटीज को शो करेगी लेकिन स्पीड उसकी सेम रहती। जैसा कि एक पॉइंट है, मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो उसके लिए जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहता है। दैट मीन्स वेलोसिटी उसकी चेंज होते रहती लेकिन स्पीड उसकी चेंज नहीं होती। तो पॉइंट नंबर 5 हमको ये कहता है। सेम केस पॉइंट नंबर 6 ऑल्सो व्हाट इट इज शोइंग दैट वेलोसिटी कैन डिक्रीज विद टाइम फॉर ए मूविंग बॉडी, इट कैन बी ज़ीरो। वेलोसिटी उसकी क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट से कम होके ज़ीरो भी हो सकती। जैसा कि अब यहाँ से उसकी वेलोसिटी कम होती ये पॉइंट पे आके फिर पूरा ज़ीरो हो जाएगी, फिर यहाँ से वेलोसिटी बढ़ के फिर यहाँ पे आपके फिर ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे इस तरीके से होता है। तो ये वेलोसिटी से रिलेटेड 6 पॉइंट है। नाउ स्क्रीन पे देखिए आप, लास्ट पॉइंट ये है वेलोसिटी को लेके, द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी मेजर इन मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड में मेजर होते हैं। देखिए स्टूडेंट, मीटर्स पर सेकेंड को 2 तरीके से लिखा जाता है, वापिस आपको बोर्ड दिखेगा, लुक एट द बोर्ड। मीटर पर सेकेंड आपको MS ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर मीटर पर सेकेंड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, so this is all about our answer related to the speed and velocity. So in examination it might be asked you the answer distance between speed and velocity. You need to write this answer. And one more thing student, I place the answer difference between distance and displacement also. If you want this answer you need to rewind your video for a few minutes. Okay, now we will going to do one more activity, that is activity number 4. Okay, observing the direction of motion of an body.
दैट मीन्स वी आर ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, दैट मीन्स एक कोई बॉडी है उसका जो मोशन होता है उसका डायरेक्शन किस तरीके से होता है। केयरफुली ब्रिंग अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग in the horizontal plane, release the object while it is wriggling on the strip. In which direction does it move? Try to release the object at different points on the circle and observe the direction of motion of an object after it has been released from the string. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है हमको, केयरफुली एक ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग को दैट इज टाई करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। सपोज ये समझिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कंसीडर दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ आई एम गोइंग टू हैंग वन स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग, और यू कैन से दैट वन स्प्रिंग आई एम गोइंग टू like this tied, okay. After tying this, release the object when, now after that here I will going to tie one object, might be object you can take either stone or anything you can take. Now I will going to just hold this object. After holding this I will going to release the object. So now you need to try to release at different point. First I am tying here, that I am just stretching the object and leaving. पहली दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को ऐसा स्ट्रेच करके छोड़ दे रहा हूँ। सेकेंड टाइम क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से लेफ्ट साइड पे ले लेके आ रहा हूँ। थर्ड टाइम राइट साइड पे ले लेके आ रहा हूँ, यानी डिफरेंट प्लेसेस पे ट्राई कर रहा हूँ इसको। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द tangent टू द सर्कल। एट द पॉइंट वेयर यू रिलीज इट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द tangent टू द पाथ ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की है, जब भी आप इसको रिलीज करते, सपोज ये एक सर्कल है समझिए आपका, ठीक है सर्कल है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता हमेशा अलॉन्ग विथ स्ट्रेट लाइन रहता, लाइक ए टैंजेंट। टैंजेंट किसको बोलते हैं, जो सर्कल के ऊपर से जो लाइन्स आपको जाएंगे ना, इसको हम टैंजेंट कहते हैं। तो सर्कल मैक्सिमम जो टैंजेंट, एक सर्कल में मैक्सिमम टैंजेंट होते हैं, यूजुअली 4 टैंजेंट रहेंगे। तो पहला अगर कि मैं डायरेक्ट ऐसा रिलीज करूंगा तो उसका स्ट्रिंग का जो यानी कि डायरेक्शन रहेगा इस तरीके से। अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में करूंगा तो स्ट्रिंग का जो डायरेक्शन रहेगा कुछ इस तरीके से। अगर राइट साइड पे करूंगा तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रहता है, तो इसे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर मान के चलेंगे। सो द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। एज यू नो दैट कि SI यूनिट जो होता है वेलोसिटी का, वो मीटर पर सेकेंड होता है। इन आवर डेली लाइफ वी मस्ट हैव ऑब्जर्व मेनी मोशंस। हम हमारी जो डेली लाइफ की ज़िंदगी है उसमें कई सारे मोशंस हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे। वेयर इन सम कॉजेज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द मोशन इज कॉन्स्टेंट, बट इन अदर केसेस इट कंटिन्यूसली चेंजेस। देखिए यहाँ पे होता कि जो भी हम मोशंस हम हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन रहता है उसकी वेलोसिटी चेंज होते रहेगी, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, किसकी चेंज होगी। सपोज हमारे पास जो सन है, ठीक है, जो सन हमारे को यानी कि जो हमारी अर्थ रोटेट हो रही, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वैसे ही अगरचे कि हम जो वेलोसिटी जो कांस्टेंट नहीं है, अगर कोई एक ट्रेन जा रही है तो ट्रेन क्या होती है, जाते 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 स्लो होती फिर रुकती, दैट मीन्स इट्स डोंट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी। विथ motion is called uniform motion. Why? Let us understand. Now we will going to learn 2 things here. One is uniform motion and another is non-uniform motion. So these 2 things, uniform, I am just writing here like uniform motion and non-uniform motion. These 2 things we will going to learn in our coming session, next session. Okay, thank you.